How many of you are joined? Only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, we will wait for 2 more minutes till that to go through these different photographs available. ऋतु कितने लोग आए अभी? ऋतु कितने लोग आए हैं? सर 10. 10. ओके, तब तक हम लोग ओके ठीक है, एक 2 मिनट के लिए हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर लेते कितने फ्लावर्स हमने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किए थे, उनके फोटोग्राफ दिखा देते, हम डिस्कस करते व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री इट इज एंड व्हाट इज व्हाई. यस सर, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है. मेरी आवाज धीरे आ रही है, जस्ट मिनट. क्या अभी मेरी आवाज क्लियर है? हेलो, यस सर. आवाज क्लियर है अभी? यस सर, क्लियर है सर. यस सर. जस्ट मिनट, मेरा प्रेजेंटिंग विंडो गायब है. जस्ट मिनट. Now images are clear, visible. Hello. Yes sir. Yes sir. And now I think my voice is also visible. I don't know at present how many of you have joined. I think 18, 19 of you have joined the meeting, and so we should start with some introductory part. So in our previous practical, in last practical we have studied symmetry of the flower, and I have already stated that there are two basic types of symmetry. Symmetry, that is symmetry may be present or symmetry may be absent. If symmetry is present or if flower is symmetrical, sometimes it may not show presence of any symmetry, and we say that flower is asymmetrical. And we have considered the example that is of canna flower, and canna is asymmetrical and rest of all flowers are symmetrical, whichever we have discussed. Okay, then now as far as symmetry considered, in case of living organism or in case of a plant, specifically flower, there are two types of symmetry. One is actinomorphic symmetry, or which is also called as a radial symmetry. For example, in case of a starfish, actinomorphic or radial symmetry is observed, or in the real sense, flower is symmetrical on the radius more than 2 axes, and then flower is called as a symmetrical flower, or flower is called as a actinomorphic flower. While if there is only one or less than 2 axes against which flower shows symmetry, then it is known as bilateral symmetry, or it is, to be more precise, known as zygomorphic symmetry. So now here we go through three different important terms, that is symmetry, asymmetrical nature, actinomorphic symmetry, and zygomorphic symmetry. So I think it is clear to all of you. So I have shared about 60 different images of different flowers. Due to pandemic situation, it was not necessary to collect each and everything and show you. But whatever flowers we have collected,
these flowers are collected only from the surrounding, and I am going to share the images. I think most of you might have brought also flower. In last practical, we have brought the flowers for study. So we go through these different images and we come across these different flowers. So the image to the last, that is extreme right side image of the bottom, is of Nyctanthus arboretus, or it is known as Parijatak. Have you observed the flowers of Parijatak? Yes, sir. Yes, sir. It belongs to which family? Hello? Parijatak belongs to which family? Anybody? Jansineaceae, Jasnariaceae, क्या आपको पता है? Jansineaceae, Jasnariaceae family पता है? So these are the flowers of Nyctanthus arboretus, or they are known as a Parijatak. They are supposed to offer to Lord Krishna or Lord Vishnu. Toward the center, we can observe a pink or orange colored spot, and basal portion, or uh, you can observe this portion of the petal which is fused or united. It is also saffron color or orange color, and this one is nothing but प्राजक्ता. मैंने प्राजक्ता किया है शायद, जस्ट नहीं प्राजक्ता. तो Nyctanthus arboretus. जस्ट मिनट, हम फैमिली ढूंढ रहे थे. इट बिलोंग्स टू विच फैमिली हमें ढूंढना है? सर इट ओलिएसी. कौन सी? सर ओलिएसी. Oleaceae, yes. Oleaceae or Olacaceae, Oleaceae. Normally, most of the members of Olacaceae or Oleaceae family, Oleaceae or Olacaceae, Olacaceae members are normally colorful and they show fragrance to flower. Just a minute. Nyctanthus arboretus. Nyctanthus arboretus and Nyctanthus arboretus are on Wikipedia how these flowers are. They belongs to family Olacaceae and genera is Nyctanthus. So as far as this family considered, this flower considered, it shows typically actinomorphic symmetry and it belongs to Oleaceae या Olacaceae, Olacaceae. Then it is showing actinomorphic symmetry because it shows five different radius against which the flower is symmetrical. Then next one, Thumbergia. Hello, आप लोग सुन रहे हैं? यस सर. There are different varieties in case of Thumbergia. Whether the Thumbergia is actinomorphic or zygomorphic, Thumbergia, I have some doubt because it belongs to family. Just a minute. Thumbergia. Gamopetali की family है. Just a minute. Thumbergia. Convolvulaceae का member है Thumbergia. Acanthaceae. Acanthaceae का है, तो it is zygomorphic and not actinomorphic. Just a minute. हम फ्लावर डिस्क्रिप्शन देख लेते थम्बरजिया का, so that it would be clear. लेकिन it belongs to zygomorphic nature शायद. थम्बरजिया फ्लावर डिस्क्रिप्शन. तो Thumbergia alata, commonly called as the black-eyed Susan pine, is a herbaceous perennial climbing plant species in family Acanthaceae. It is a native of East Africa. लेकिन फ्लावर का डिस्क्रिप्शन दिया नहीं है. Thumbergia flowers make a black-eyed Susan very recognized. The generous ornamental Thumbergia alata makes good screen with the help of fence support trees such about edibles. फ्लावर का डिस्क्रिप्शन जस्ट Acanthaceae.
एंथेसी। क्या आपने डिस्क्रिप्शन बनाया है? हैव यू प्रिपेयर्ड डिस्क्रिप्शन? किसी ने डिस्क्रिप्शन बनाया है? आई हैव सम डाउट। थंबरजिया का डिस्क्रिप्शन किसी ने बनाया है? No, sir. जस्ट मिनट। थंबरजिया ग्रैंडिफ्लोरा, थंबरजिया अलाटा, थंबरजिया, जस्ट थंबरजिया यहाँ नहीं मिलेगा। I have some doubt। मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन हम देखते। थंबरजिया ग्रैंडिफ्लोरा। आप लोगों ने कितने फ्लावर्स का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट किया है? एनीबडी? एलोकोमा, जस्ट मिनट, आइसोलेशन, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, टेबल 1। ये तो हमें जो चाहिए वो डिस्क्रिप्शन नहीं है। डीएनए एक्सट्रैक्शन हमारे काम का कुछ भी नहीं है इसमें। जस्ट मिनट। थंबरजिया, न्यू स्पीसीज फ्रॉम थाईलैंड, थंबरजिया, मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, थंबरजिया। जस्ट मिनट, हम फिगर नहीं देखते, फ्लावर्स ऑफ इंडिया में देखते हैं। फ्लावर्स ऑफ इंडिया, फ्लावर्स ऑफ इंडिया। क्या लगता है आपको, थंबरजिया का फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होगा या जाइगोमॉर्फिक होगा? हेलो? एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक लग रहा है, लेकिन फ्लावर बिलोंग्स टू गैमोपेटैली एंड हेंस आई थिंक इट शुड बी जाइगोमॉर्फिक। इसीलिए हम डिस्क्रिप्शन ढूंढ लेते हैं सो दैट इट बिकम्स इजी, नहीं तो तब तक हम पेंडिंग रखते। थंबरजिया, थंबरजिया अलाटा, थंबरजिया, बहुत सारे अलग अलग स्पेसीज है। So you just observe it here. So this one is Thunbergia. You just Bengal clock has called by some most beautiful wine of the world from distance from who। चलो हम फ्लावर का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। फ्लावर का डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया है क्या? Beautiful 3-inch white, pale blue or white flowers are cup like with pale yellow or cream blue centers. The plant can be bloomed at nearly of the year, but will during cold months the rampant grows this wine। दिया नहीं है, चलो तब तक हम देख लेते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। मैंने यहाँ दिया है एक्टिनोमॉर्फिक की, फिर भी आई हैव सम। सिमेट्रिकल आता है। हाँ, यस, सिमेट्रिकल है सर। सिमेट्रिकल है ऐसा मुझे भी लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट क्यों है मैं बताता हूँ। आपने ये अगर डायग्राम देखी तो क्या आपको ये सिमेट्रिकल लग रहा है? सर उसमें 5 पेटल्स तो है ना, डिस्टिंक्ट पेटल्स। फाइव डिस्टिंक्ट है, इसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन हाउ मेनी रेडियस अलोंग विथ दिस फ्लावर इज सिमेट्रिकल? मोर देन 2 रेडियस है। चलो मैं उसके लिए आपको दूसरा एक एग्जांपल बताता। अकेंथेसी का हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अकेंथेसी में वेरी फर्स्ट प्लांट विच आई थिंक दिस वन इज फ्रॉम अकेंथेसी एंड दिस प्लांट इज एडाकोरा वसिका। क्या ये सिमेट्रिकल है? इसमें भी 5 पेटल्स है। हेलो? हाँ, इसमें नहीं है, लेकिन आई हैव आल्सो सम डाउट रिगार्डिंग दैट प्लांट। जो फ्लावर दिख रहा है दैट इज सिमेट्रिकल, नो डाउट, लेकिन इट मे बी डिफरेंट वैरायटी ऑफ Thunbergia, and so Thunbergia belongs to Acanthaceae। at this stage हम इसको है दिख रहा है करके हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट प्लांट है लेपिडागैथिस क्रिस्टाटा। इट बिलोंग्स टू फैमिली, कौन सी फैमिली है? हेलो? Acanthaceae. Lepidagathes, yes, Acanthaceae. Lepidagathes is also from Acanthaceae, and
as far as Lepidopteran is considered, it is no doubt it is zygomorphic in nature. It has a bilabiate corolla. Just a minute, I should check again one more time whether it belongs to same family or not. Just a minute. Let me check first. Just a minute. There should not be any confusion, and that's why I have decided to check one more time. Lepidopteran piscata. Lepidopteran piscata, that is in flowers of India. It is known as Buigenda or Terda, a botanical name, and it belongs to Acanthus. Okay, no problem. So Lepidopteran piscata, it is again zygomorphic. मतलब हम Acanthus के 3 फ्लावर देखते हैं, ये तीनों फ्लावर, 2 फ्लावर कम से कम उसमें zygomorphic है. चलो नेक्स्ट देखते. Ternaria ulmifolia. It belongs to family. Anybody? Hello. It belongs to family Ternariaceae. Okay, and it is showing actinomorphic flower. Then next one, next plant कौन सा है? हेलो, क्या नाम है प्लांट का? Quisqualis indica, or it is known as Madhumalati, or it is also known as a Rangoon creeper, and this flower is actinomorphic flower. It belongs to family. Just a minute, Quisqualis की family Combretaceae तो नहीं है? Just a minute, I have some doubt. Yes sir, वही है सर. कौन सी? Combretaceae है ना? हाँ yes sir. Okay, तो ठीक है. Yes sir. Combretaceae, Quisqualis indica. The next one is Almanda species. It belongs to family Apocynaceae. Apocynaceae, and it is again actinomorphic in nature. Finca भी हमने इसमें से देखा है. It is again actinomorphic. Next one, Petunia. लेकिन this plant I have some doubt regarding whether this one is Petunia or not, or whatever this flower is, it is actinomorphic. Next one, next plant, that is Tephrosia purpurea, and it belongs to family, subfamily Papilionoideae, or it belongs to family Papilionaceae. And how it is whether actinomorphic or it is showing zygomorphic symmetry. हेलो, एक्टिनोमॉर्फिक है या ज़ाइगोमॉर्फिक है? Zygomorphic. Then next one, Sesbania grandiflora. It is also known as Hadga, or it is known as Augusta. Again, it belongs to Papilionoideae. It has typically standard petal, 2 wings and 2 keels, and hence it is zygomorphic in nature. Then next देख लेते. Next plant कौन सा है? Anybody? हाइपोमिया की स्पेसीज है. मैंने स्पेसीज इसलिए लिखा है क्योंकि इट इज एक्वेटिक हाइपोमिया, एंड दिस हाइपोमिया इज बिलोंग्स टू फैमिली कॉन्वॉल्वुलेसी. यस, आपने बनाया है? यस सर. हाँ, इट बिलोंग्स टू कॉन्वॉल्वुलेसी, and it is showing actinomorphic symmetry because more than 2 radius where this flower is symmetrical. Then next one, that is Calotropis procera, and this one, it belongs to family Asclepiadaceae. Which one? Yes, Ritu? Apocynaceae. आप लोग Apocynaceae इसलिए बोल रहे हैं. There is little confusion between old classification system and new classification system. आपने जहाँ देखा है, that is new classification system. According to ICN or International Council of Nomenclature. क्या आपने ये नाम सुना है? ICN? Yes sir. Just
5 years ago, it was called as ICBN, that is International Council of Botanical Nomenclature. So, according to ICBN, earlier it was included in Asclepiaceae, but now Asclepiaceae is merged into Apocynaceae, and hence it is mentioned wherever. ऋतु आप बात कर रहे थे ना अभी? नो सर, गायत्री। ओके, गायत्री बात कर रही थी, तो गायत्री ने शायद देखा था वो नए, इससे मैं आपको एक दो जगह दिखा सकता हूँ। व्हाट इज Asclepiaceae? जस्ट मिनट। Just a minute. Sure. So the thing might be clear to you. Earlier it was in Asclepiaceae, and now Asclepiaceae is merged into Apocynaceae. Just a minute. अपना प्लांट का कौन सा? कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा होगा, नहीं तो दूसरी भी कोई स्पेसीज होगी। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, प्रोसेरा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा होगा, नहीं तो गिगैंस क्या होगा? तो आप यहाँ देख सकते हैं फैमिली कौन सी दी है, जस्ट देख लेते। सो यू कैन ऑब्जर्व हियर इट बिलोंग्स टू फैमिली एपोसाइनेसी। दिख रहा है? हेलो? हाँ, लेकिन आपने अगर अस्कलपेडियेसी भी लिखा तो गलत नहीं है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट नॉमेनक्लेचर, अस्कलपेडियेसी इज मर्ज्ड इनटू एपोसाइनेसी, so no problem regarding that. Many more people still consider it belongs to older family, that is Asclepiaceae. Then next one, next plant, which one? Yes, Argemone mexicana. Argemone mexicana, and Argemone mexicana belongs to family Papaver, and it shows typically yellow colored flowers with persistent corolla. Corolla persistent नहीं, corolla जो है वो normally shade हो जाता है, yellow colored corolla, and this family again belongs to dicot, and it shows actinomorphic symmetry or it shows radial symmetry. चलो नेक्स्ट प्लांट के बारे में हम बात करते हैं। कौन सा प्लांट है ये? एनीबॉडी? Solanum nigrum. Solanum nigrum, yeah, it is known as a black nightshade, yeah, in Marathi it is known as Kali Kanguni, and flower is showing pentamerous symmetry. There are 5 petals, even stamen number is 5, and it is a radially symmetrical. There are at least minimum 5 radius against which the flower is symmetrical, and hence this plant, that is Solanum nigrum, which is actinomorphic symmetry, showing actinomorphic symmetry. There is one more speciality regarding actinomorphic symmetry of this plant, or this plant, that is Solanum nigrum, which is डोडिकैप्लॉइड। क्या आप लोगों ने डोडिकैप्लॉइडी या डोडिकैप्लॉइड एक टर्म इसके पहले सुनी है? हेलो हेलो, क्या आपने डोडिकैप्लॉइडी या डोडिकैप्लॉइड ये टर्म इसके पहले कभी सुनी है? नहीं सर। जस्ट चलो, क्या कम से कम आपने प्लॉइडी टर्म सुनी है? PLOIDY, प्लॉइडी? यस सर। Ploidy means presence of complete set or sets of chromosome. Suppose for example हम haploid बोलते हैं, that is presence of one complete set of chromosome. Beside that diploid बोलते हैं, that is presence of 2 complete set or sets of chromosome. Triploid, tetraploid, pentaploid, etc. And beside that, ploidy is of a 2 type, that is alloploidy and another is autoploidy. ऑटो मीन्स अगर कंप्लीट है, सिमिलर टाइप ऑफ है, तो हम बोलते हैं ऑटोप्लॉइडी, और एलो मीन्स डिफरेंट, अगर डिफरेंट लेवल ऑफ प्लॉइडी है तो हम बोलते हैं उसको एलोपॉलीप्लॉइडी या एलोप्लॉइडी। तो मैंने अभी अभी आप लोगों से टर्म बताई थी, दैट इज डोडिकैप्लॉइडी। हम देखते हैं व्हाट इज डोडिकैप्लॉइडी। डोडिकैप्लॉइडी,
Yes, dodecaploidy. So dodecaploidy means presence of chromosome number 12N is equal to, जितने भी है कितने पेयर्स है, that is 12 पेयर्स. जैसे हम डिप्लॉइड बोलते हैं, ट्रिप्लॉइड बोलते हैं, टेट्राप्लॉइड बोलते हैं. So just like that it is dodecaploid. Just a minute. Ploidy, dodecaploid कहीं भी दिया नहीं है. लेकिन remember the plant which we have studied its image or observed its image, जिसकी हमने अभी अभी इमेज देखी थी, इट वन इज अ डोडिकैप्लॉइड एंड नेम ऑफ द प्लांट दैट इज, जस्ट अ मिनट, कहा गया अपनी फिगर, yes, so this one, so this one that is Solanum nigrum, that is black nightshade, or it is known as a Kai Konguni, and it is dodecaploid in nature, but it is showing actinomorphic symmetry. Then next one, next plant कौन सा है? Anybody? Hello? क्या कोई बता सकता है नेक्स्ट प्लांट कौन सा था? हेलो, नेक्स्ट प्लांट कौन सा है? किसी ने बताया नहीं. हेलो, नेक्स्ट प्लांट कौन सा है? ये प्लांट कौन सा है? फ्लावर बहुनिया. हेलो, क्या आप देख रहे हैं? बहुनिया पुरपुरिया. बहुनिया परप्यूरिया. परप्यूरिया मीन्स पर्पल एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली फैबेसी या सिसाल्पिनॉइडी या पैपिलियोनॉइडी. कौन से फैमिली से है? बहुनिया कौन से फैमिली से है? फैबेसी. फैबेसी. और उससे भी बेहतर अगर सब फैमिली लेवल तक हम गए तो, हेलो, एक जस्ट मिनट, बहुनिया. So you just observe here बहुनिया. As far as बहुनिया considered, it belongs to family Fabaceae. लेकिन आप सभी को पता है it is divided into 3 subfamilies, that is Papilionoideae, Cisalpinoideae, and next one is Mimosaideae. तो इन तीनों में से कौन सा है? हेलो, बहुनिया सब फैमिली कौन सी है? आपने डिस्क्रिप्शन बनाया है? एनीबडी, आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन बनाया है? बहुनिया का डिस्क्रिप्शन बनाया है आपने? नो सर. डिस्क्रिप्शन बनाया नहीं है. मुझे थोड़ा सब फैमिली में प्रॉब्लम लग रहा है. व्हाट इज द फैमिली ऑफ बहुनिया? पेरिगैथा सेम दिखा रहा है. सो इट बिलोंग्स टू पैपिलियोनॉइडी, और अगर पैपिलियोनॉइडी का है तो इट शुड बी ज़ाइगोमॉर्फिक. मुझे डाउट आ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा इसको होल्ड किया था. मैंने एक्टिनोमॉर्फिक ज़ाइगोमॉर्फिक ऐसा कुछ बताया नहीं था, बिकॉज इसमें एक स्टैंडर्ड पेटल, लेकिन विंग ऑफ कील नहीं है. नहीं, जस्ट मिनट, जो दिया था वही बराबर है. इट इज एक्टिनोमॉर्फिक, नो डाउट, इट इज एक्टिनोमॉर्फिक. नेक्स्ट प्लांट कौन सा है? नेक्स्ट वन, यस, लास्ट टाइम लाया था, लेकिन मुसांडा. मुसांडा की स्पीसीज है, हो सकता है मुसांडा फ्रंडोसा. फैमिली कौन सी है मुसांडा की? रूबिएसी. रूबिएसी. रूबिएसी में खास करके ध्यान में रखो, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ इंटरपिट्यूलर स्टिप्यूल. मैं आपको इंटरपिट्यूलर स्टिप्यूल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखाता हूँ. सो दैट रूबिएसी का और कौन सा प्लांट आपको मालूम है? हेलो, anybody can tell me रूबिएसी का और कौन सा प्लांट हम लोगों ने देखा है?
क्या कोई बता सकता है? रूबिएसी का हमने देखा है। जस्ट लास्ट टाइम Igora, Sir, आपको Cosin, Cosin, Ixora coccini. As far as Igora, Ixora Cosin. coccinia also considered, it belongs to family Rubiaceae. And just now I have told you the characteristic feature, that is presence of interpetiolar stipule, that is in between two petioles. क्या आप यहाँ नोडल पोर्शन देख रहे हैं? और दो साइड तो दो लीफ है। Yes, sir. Yes, And, sir. and you can also observe here presence of triangular papery membranous structure, and that is nothing but the stipule. And hence this stipule is called as interpetiolar stipule. क्या आपको क्लियर हो गया? इंटरपिट्यूलर दैट मींस इन बिटवीन टू पिट्यूल्स, ये एंड ये दो पिट्यूल के बीच में ऐसा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, and this structure is known as interpetiolar stipule. Also you can observe here also presence of interpetiolar stipule. आप यहाँ पिट्यूल के अलग अलग टाइप भी देख सकते हैं. You can observe here types of petiole. Tree that is with petiole base, ये देख रहे हैं आप, petiole के base से adnated. Then ocrea या membranous stipule. Then encircling petiole जो encircle कर रहा है ऐसा. Then interpetiolar, that is in between petiole, or this one is interpetiolar stipule. Intrapetiolar and interpetiolar. In between जो two petioles है वो. Is it clear to you? Interpetiolar stipule. yes, sir. That means on the nodal portion, two leaves are formed, and in between two petioles, there is a stipule or membranous structure, and such a structure is known as interpetiolar stipule. So remember, this is the characteristic feature of family Rubiaceae. It shows presence of interpetiolar stipule, and Musanda is also belongs to family. कौन सी बताई मैंने? Rubiaceae. Rubiaceae, and hence this one is actinomorphic. चलो next देखते. Next flower is which one? This कौन सा है? Anybody? Last time मैंने बताया था. Next flower कौन सा है? Bagad. नहीं, बागड़ नहीं, बागड़ नहीं. This one is Hyptis, Hyptes. Hyptis suviolens, and this plant is present along the roadside. Normally रेनी सीजन ऑनवर्ड्स, विंटर सीजन में बहुत अच्छी खुशबू आती है. लैमिएसी लैबिएटी फैमिली का मेंबर है, and name of the flower is Hyptis suviolens. Even on the lateral side, you can observe the presence of two lobed petiole, that is gamopetalised condition, and hence this plant is again showing zygomorphic nature. Is it clear to you? Yes, Hyptis zygomorphic. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वन, जस्ट मिनट. नेक्स्ट प्लांट हम देखते हैं. नेक्स्ट फोटोग्राफ जो है कौन सा है? नेक्स्ट फोटोग्राफ, एनीबॉडी? Banana. And its nature is again zygomorphic. बनाना का नाम क्या है? एनीबॉडी? Musa acuminata. मुसा पैराडिसिका, हम जो खाते हैं उसका मुसा पैराडिसिका. एक्यूमिनाटा तो ये नहीं है, मुसा पैराडिसिका, एंड इट्स नेचर इज zygomorphic. It shows presence of large number of the flowers enclosed in a spathe. स्पेथ में enclose किए हुए zygomorphic flower दिखते हैं. जस्ट मिनट. सॉरी, नेक्स्ट फ्लावर कौन सा है? Sir, Citrus sinensis. कौन सा? Citrus sinensis. साइट्रस फैमिली का है, एंड दिस वन इज साइट्रस स्पेसीज. यस, एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली रूटेसी, and it is also known as a mandarin group. So in case of citrus family, you can observe the anthers in a multiple of 5. Petals are also in a multiple of 5, and it shows actinomorphic symmetry. Just a minute. So next one, next flower कौन सा है? Yes, anybody?
Murraya paniculata. Which one? हेलो, कौन सी फैमिली का है? हेलो, इट बिलोंग्स टू विच फैमिली? Murraya paniculata belongs to which family? Rutaceae. Huh? Rutaceae. Rutaceae. Murraya paniculata belongs to family Rutaceae. It is also known as a flower of a kunti. So, as far as Murraya flower considered, Murraya flower shows presence of actinomorphic symmetry because it shows presence of 5 petals. Anthers are also 5. ये प्लांट तो हमने देखा है, it shows actinomorphic symmetry. Then next one, next plant कौन सा है? Anybody? Yellow Calotropis. नहीं, कैलोट्रोपिक्स के बाद का, कैलोट्रोपिक्स तो हमने इसके पहले देखा है. Hence, no need to go through calotropis. Next plant कौन सा है? Anybody? Yellow colored flowers. This one. So champa. Michaelia champaka या Magnolia champaka, and it belongs to family Magnoliaceae. Normally, it is actinomorphic in nature. It shows presence of large number of perianth, but these are in a multiple of 3, but it is showing actinomorphic symmetry. Then next plant हम देखते कौन सा है? Which one this? Hello, which flower? Lathyrus sativus. Lathyrus sativus. Yeah, it is also known as Lakhori in normal language. I think most of you might be known. Lathyrus was there was a ban on utilization of Lathyrus, but nowadays this ban has increased. So Lathyrus, क्या Lathyrus actinomorphic है? Hello. Yes, sir. Actinomorphic है Lathyrus? Yes, sir. नहीं, Lathyrus actinomorphic नहीं है. Lathyrus is zygomorphic. Remember? Hello. Zygomorphic. Lathyrus is zygomorphic. Lathyrus actinomorphic नहीं है, ध्यान में रखो, क्योंकि Papilionaceous corolla दिख रहा है. Lathyrus belongs to Papilionoideae group or Fabaceae family. The next one, Gulmohar. Again, it belongs to Faboid and it shows one unusual petal and rest of petals are also unequal. So it belongs to zygomorphous nature, zygomorphic nature. That is Gulmohar or Delomix regia, which belongs to family Fabaceae. Then next one, next plant कौन सा है गुलमोहर के बाद का? Which one? Cisalpinia pulcherrima. Cisalpinia pulcherrima. Remember, in case of family Cisalpiniaceae, there are some genera which may show presence of actinomorphic symmetry or actinomorphous flower. But in case of this, flowers are zygomorphic and name of the plant is Cisalpinia pulcherrima. And Cisalpinia pulcherrima is known in Marathi as a Shankasur. So Cisalpinia pulcherrima, that is zygomorphic. Then after that we have to go through another flower, and next flower is which one this? Corianderum sativum, and Corianderum belongs to family Apiaceae, or old name of the family is Umbelliferae, which shows typically presence of umbel inflorescence, and hence peripheral flowers are zygomorphic. ये जो white color के दिख रहे हैं, these are 3 petals, remaining 2 petals, 3 or 4 petals. So remaining 1 or 2 petals, these are normally zygomorphic and hence the flower is zygomorphic. Next one, which is flower of which plant or inflorescence of which plant? Colocasia esculenta. Colocasia esculenta. Colocasia group, which normally known as a group of dhopa. Dhopa किंवा अळू म्हणता तुम्ही. Now, as far as Colocasia considered, this one is a typical type of inflorescence is a spadix. In spadix type of inflorescence, these flowers cursor to top, they are of a different nature, and these flowers are base to spathe, these are of a different nature.
So these are the female flowers and apical flowers are male flower, or sometimes vice versa is observed. So there are both actinomorphic as well as zygomorphic flowers in inflorescence of colocasia. So next one is a flower of coconut or flower of a palm, and they are trimorphic in nature. यहाँ मैंने zygomorphic लिखा है, लेकिन these are not zygomorphic, these are actinomorphic flowers. हेलो, क्या आपके ध्यान में आ रहा है? क्योंकि इसमें सिमेट्री थ्री अक्रॉस थ्री एंगल सिमेट्री है, एंड दैट्स व्हाई नेचर ऑफ द फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक इन केस ऑफ कोकोनट, दैट इज कोकस नुसिफेरा, कोकोनट. नेक्स्ट प्लांट देखते हैं. नेक्स्ट प्लांट इज बॉम्बैक्स सीबा और बॉम्बैक्स मलबेरिका. इट बिलोंग्स टू फैमिली बॉम्बैकेसी एंड अर्लियर इट वाज प्लेस्ड इन अ मालवेसी फैमिली. गलती से मैंने लास्ट प्रैक्टिकल में आपको शायद सोलेनेसी बताया था. मेक इट जस्ट करेक्टेड. So Bombaceae and this flower is showing actinomorphic symmetry. Bombaceae as well as Malvaceae are families of dicot. चलो ये भी रिपीट हो गया. नेक्स्ट फ्लावर कौन सा है? प्लूमेरिया अल्वा. प्लूमेरिया अल्बा. अल्बा का मतलब होता है व्हाइट. एंड देयर इज वन मोर स्पेसीज व्हिच इज नोन एज प्लूमेरिया रूब्रा. शायद जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट है उनको मालूम होगा, अपने गार्डन में प्लूमेरिया प्लांट है एंड उसको रेड कलर्ड फ्लावर से मैं दिखाता हूँ. प्लूमेरिया रूब्रा. जस्ट मिनट, आप फ्लावर्स देखो सो दैट यू हैव आइडिया. यस, क्या आपने ये फ्लावर्स देखे हैं? यस सर. अपने गार्डन में है? शिवानी, शिवानी चांबारे, इंदुरकर. यस सर, है, देखे हैं सर. है. जैसे हम स्टैट की तरफ से डिपार्टमेंट में अंदर जाते हैं, वहाँ लेफ्ट हैंड साइड को जाम का एक पेड़ है, उसके बाजू में दिस वन इज अ comparatively big tree and it has such a pink colored flowers. Again it shows actinomorphic symmetry. So symmetry in case of Plumeria alba is quite actinomorphic and white in a color, while Plumeria rubra is pink in a color. ये भी रिपीट हो गया. Then next one, ये कौन सा है? Hello, which one this flower? Anybody can tell me? हेलो, ये फ्लावर कौन सा है? कोई बता सकता है? यस, एनीबडी कैन टेल मी? मैंने जानबूझ के इसको एनलार्ज किया है. हम कितने कैजुअली देखते हैं, थोड़ा देख लो. यू कैन ऑब्जर्व हियर नंबर ऑफ पेटल्स 4, बट यू कैन ऑब्जर्व हियर प्रेजेंस ऑफ गाइनोफोर. गाइनोफोर है, not only gynophore लेकिन androphore, so it is known as gynandrophore, and this one belongs to family Caparidaceae and name of the plant is Caparis zelanica. so थोड़ा सा इसकी सिमेट्री देखते वक्त ध्यान में रखो कि यहाँ मैंने zygomorphic लिखा है, लेकिन in some of the species of Calotropis even actinomorphic flowers are also observed. The next one, inflorescence of a sunflower. क्या आप लोग सभी सुन रहे हैं? Yes, sir. Inflorescence of sunflower, which is head or capitulum type of inflorescence, and this shows toward the periphery yellow colored flowers. These yellow colored flowers are ray florets. मैंने पहले बताया था आपको कि फ्लोरेट जब बहुत सारे माइन्यूट फ्लावर्स होते हैं तो देन दे आर नोन एज अ फ्लोरेट. जैसे ब्रेन की जगह इन केस ऑफ एनिमल लाइक अर्थवर्म वी से दैट इट इज अ गैंग्लियन, यानी नर्व सेल्स है, वैसे गैंग्लियन. वैसे इन केस ऑफ दिस these are florets and not flower. Peripheral flowers are zygomorphic and these are known as a ray floret, while these central flowers are known as actinomorphic and these flowers are known as disc flower florets. So this one sunflower. Then next, sunflower belongs to family Asteraceae or older family Compositae. Then next one, Acacia arabica. येलो कलर का जो पोर्शन दिख रहा है, दिस वन इज द इन्फ्लोरेसेंस इन केस ऑफ अकेसिया. एंड एज फार एज अकेसिया कंसीडर्ड, फ्लावर्स आर एक्टिनोमॉर्फिक इन नेचर.
चलो नेक्स्ट देखते। नेक्स्ट फ्लावर्स ऑफ ब्रिंजल, that is Solanum melongena, and in case of Solanaceae family, flowers are actinomorphic in nature. Is it clear to you? Hello? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Flower is actinomorphic in nature. Next is Cydium guzawa, or which is known as a zam. Remember, wrongly during last practical I have told you as a Cydium as a member of a Lythraceae. But remember, Cydium is not member of Lythraceae. Cydium is a member of which one family? Cydium कौन से फैमिली का मेंबर है? जाम या पेरू कौन से फैमिली? Mitraceae. कौन सी? Yes, pronunciation may be wrong, but I think you are correct. Which one? Mitraceae. Myrtaceae, Myrtaceae, Myrtaceae. So remember, last time I might have told you wrongly in hurry, but this one belongs to Myrtaceae. Again, it shows actinomorphic symmetry. Next flower, क्या नाम है प्लांट का? हिरवा चाफा. हिरवा चाफा, and name is Artabotris odoratissimus. Is it clear to you? Artabotris odoratissimus, and it is known as हिरवा चाफा. अगर मैंने आपको बताया कि इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की तरफ हमने बराबर ध्यान नहीं दिया, तो देयर इज वन स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन केस ऑफ Artabotris. नॉर्मली फ्लावर्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन हुक लाइक पोर्शन. हुक लाइक पोर्शन पर फ्लावर डेवलप होते हैं. यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ हाउ द फ्लावर्स ऑफ Artabotris आर ऑन हुक लाइक पोर्शन. जस्ट मिनट. फ्लावर्स ऑफ Artabotris. यस. क्या आपको ये फ्लावर का स्टॉक दिखा? उसके नीचे आपने देखा होगा एक कर्व ब्रांच लाइक पोर्शन है. इज इट लाइक? हेलो? Yes, sir. And this hooked portion is present below the flower. So this is a characteristic feature of Artabotris. Flower तो green color का है ही, लेकिन it is normally developed on a hook-like portion. So this is interesting characteristic feature of Artabotris. ये आपने देखा होगा. These are the fruits of Artabotris, and these are Itario of type of fruit or aggregate type of fruit. So these are Artabotris. Again, हेलो. Yes, हेलो. sir. हाँ, जस्ट मेरा कैमरा गिरा था. जस्ट मिनट. तो Artabotris के लिए मैंने बताया था इट बिलोंग्स टू फैमिली विच वन? Artabotris की फैमिली कौन सी है? Apocynaceae. No, Artabotris belongs to family Amonaceae. गलती से भी मत ये करो. मैंने लास्ट टाइम आपको Artabotris के साथ साथ और एक प्लांट बताया था. जस्ट मिनट. क्या नाम था प्लांट का? अभी आप भूल गए. जस्ट मिनट. क्या अभी ध्यान में है? कांगा ओडोरेटा या कांगा ओडोरेटिस मैंने बताया था प्लांट का नाम. जस्ट मिनट. कैनांगा ओडोरेटा है शायद. ओडोरेटिस नहीं, ओडोरेटा. तो कांगा ओडोरेटा और कैनांगा ओडोरेटा सेम फ्लावर which is very fragrant flower. मुझे अभी भी याद में है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था. इट इज अ वेरी फ्रेगनेंट फ्लावर दैट इज ऑफ कांगा ओडोरेटा, again which belongs to family Amonaceae. Is it clear to you? कांगा ओडोरेटा. चलो नेक्स्ट देखते. नेक्स्ट फ्लावर हमने देखा है दिस वन पोर्चुलाका स्पेसीज और which is known as घोड़बाजी, member of family Portulaceae, and it again shows the presence of pentamerous flower with actinomorphic symmetry. नेक्स्ट कौन सा है? यस.
नेक्स्ट फ्लावर कौन सा है? एनीबडी? कौन सा है? विच वन नेक्स्ट फ्लावर? सीताफल. सीताफल या Custard apple. custard apple. And as far as सीताफल or custard apple is considered, custard apple और सीताफल belongs to family Annonaceae. चलो नेक्स्ट देखते. शायद आपने देखा होगा these fleshy petals are eaten by birds also. सेम फ्लावर, इसके पहले कपैरिस का नीचे दिखाया था, उसी का है ये कपैरिस झेलियानिका या कपैरिस झेलियानिका. अगेन इट शोज प्रेजेंस ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. क्या मैंने कपैरिस के बारे में और कुछ एग्जांपल या और कुछ स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर बताए थे आप लोगों को? हेलो, कपैरिस के बारे में क्या मैंने आपको कुछ बताया था? कपैरिस स्पाइनोसा. So you can observe here large number of different photographs of Capiaris. I can give you idea regarding fruit of Capiaris. So you can observe such a type of typical fruits of Capiaris are observed. क्या मैंने कुछ आपको आइडिया दी थी Capiaris fruits के बारे में? What is the local name of Capiaris? Hello. कपैरिस का लोकल नेम क्या है? हेलो, कपैरिस का लोकल नेम क्या है? क्या बताया था आपको? हेलो, फ्रूट दिख रहा है? कम से कम फ्रूट दिख रहा है, बताओ. The local name of this plant is Vadhati, or local name, another local name in a tribal area is Varaklia. I think I have told you that fruits of this plant are used for preparation of vegetable on the second day of Ashadi Ekadashi. Yes, I sir. think most of you might be known, most of us have fast on आषाढ़ी एकादशी. और अपने यहाँ आषाढ़ी एकादशी का जो उपवास सोडना मराठी में हम बोलते हैं, उपवास सोडण्या करता या फळांची भाजी खाल्ली जाते. एंड फॉर दिस पर्पज वराकल्या और वाघाटी और कपैरिस झेलियानिका fruits are important. The next one, that is आकाश नीम नहीं, आकाश नीम इज अ डिफरेंट. दिस वन इज अवर जस्ट कड़ू नीम. जस्ट मिनट, आकाश नीम आपने बात बताई इसलिए मैं बताता हूँ आकाश नीम कहाँ है. एंड इट्स नेम इज मिलिंगटोनिया. जस्ट मिनट, मिलिंगटोनिया हॉर्टेंसिस. आपने ये फ्लावर्स देखे हैं? बहुत खुशबू इसकी अच्छी रहती है. हेलो, क्या आप लोगों ने ये फ्लावर देखे हैं? Yes. Yes, sir. It is known as Millingtonia hortensis, or it is known as आकाश नीम, or it is known as भुसाचं झाड. कुठे बघितले, कोणी सांगू शकेल? एनीबडी? मोस्ट प्रोबेबली स्टुडंट्स ऑफ इन्स्टिट्यूट. एनीबडी? कोण आहे? श्रुती बागडे. श्रुती है? शिवानी? और कौन है? Yes, sir. कहाँ देखा है? मिलिंगटोनिया हॉर्टेंसिस प्लांट कहाँ देखा है? जो फोटोग्राफ मैंने अभी अभी आपको दिखाया था, दिस वन इज द फोटोग्राफ ऑफ मिलिंगटोनिया. कहाँ देखा है? चलो मैं बताता हूँ. आप इंस्टीट्यूट से बाहर निकलने के बाद अंदर घुसते हैं एग्रीकल्चर में, राइट? Yes, sir. लेफ्ट हैंड साइड में पाटिल जी का चाय का स्टॉल है, और राइट हैंड साइड को 2-3 लोग बैठते, शायद एक उसमें से अमोल है, दूसरा और कोई है, और तीसरा सोहम. तो जहाँ अमोल की पान की टपरी है, यानी पहले वाली, वहां पे ये पेड़ है. शायद लेडीज हॉस्टल में जो लोग रहते हैं उनको भी मालूम होगा. एट द एंट्रेंस ऑफ लेडीज हॉस्टल दिस मिलिंगटोनिया इज अवेलेबल. क्या आपने देखा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके.
So Millingtonia belongs to family Pycnoneaceae, but we are going to study the plant that is this one, Corunil, that is Melia agaderecta और सिनोनिम अगाडिरेक्टा इंडिका। उसके बाद नेक्स्ट वन, इसके बारे में मैंने बताया था, इन केस ऑफ टोरोटा और कैसिया टोरा, both the actinomorphic as well as zygomorphic flowers are available. It belongs to family Cisalpinoideae. The next one, that is kundru, or you may call this plant as इस प्लांट को आप क्या बोलते हैं, टोनरी किंवा कुंदरू, एंड नेम क्या नाम है टोनरीचा? कोसिनिया. कॉक्सिनिया इंडिका किंवा कोनली. Coccinia shows presence of these wiry tendrils, and flowers are unisexual, that is male are different and female flowers are different, but both the flowers are showing actinomorphic symmetry. उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एपोसाइनेसी के दोनों प्लांट हैं. फर्स्ट वन इज नेरियम, सेकंड वन इज थिवेशिया नेरिपोलिया. बिट्टी म्हणतो. बोथ द फ्लावर्स आर having attractive color yellow and pink, even red colored and white colored varieties in case of कौन से प्लांट है दोनों? एक थिवेसिया और दूसरा कौन से बताया? नेरियम इंडिकम, कनेर. In case of Nerium, white colored and red colored varieties are also available. Both the varieties are of family Apocynaceae and they are showing actinomorphic symmetry. Then next flower कौन सा है? Anybody? Hello. Next flower कौन सा है? Sistrum. Yes, Sistrum nocturnum, or it is known as Ratarani, और इट इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लैक नाइट शेड. शायद मुझे डाउट है थोड़ा सा, लेकिन इट इज रात रानी एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली सोलानेसी. इट अगेन शोज प्रेजेंस ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर. द नेक्स्ट टू इमेजेस, राइट हैंड साइड बोथ इमेजेस, दे बिलोंग्स टू लैंटाना कैमेरा, मेंबर ऑफ फैमिली वर्बिनेसी, एंड बोथ इन बोथ द फोटोग्राफ्स फ्लावर्स आर zygomatic. Next one is Mirabilis jalapa, and it belongs to family Nyctaginaceae, and it shows presence of pentamerous symmetry or actinomorphic symmetry in case of flower. Flowers are pentamerous. Then next, asymmetrical मैंने लिखा ही है कैना के बारे में. In case of this zygomorphic symmetry in case of most of monocots. Most of monocots में zygomorphic symmetry देखने मिलती है. Then Fabaceae member है टूर किंवा कजानस कजान. Again it shows presence of zygomorphic symmetry or bilateral symmetry. Then उसके बाद नेक्स्ट जो अबाव वो है तीनों में, पहला रोज, दूसरा टच मी नॉट, या आप उसको बोलते क्या मिलता चला, लाजारू या लाजवंती, माइमोसेकी का मेंबर. और नेक्स्ट वन इज मैंजीफेरा इंडिका. सो ऑल द थ्री प्लांट्स, थ्री फ्लावर्स शो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री. देन नेक्स्ट वन इक्सोरा, जो हमने इसके पहले देखा था. कैरेक्टरिस्टिक फीचर इंटरपिटियोलर स्टिक्यूल बताया था. हम एक बार और क्लियर करते. इंटरपिटियोलर स्टिक्यूल इन केस ऑफ इक्सोरा. जस्ट अ मिनट. इक्सोरा branch. So you can observe here branch of Ixora. So यहाँ देख सकते हैं आप, ये ट्रायंगुलर या थोड़ा सा पॉइंटेड पोर्शन जो है, दिस वन इज नथिंग बट इंटरपिटियोलर स्टिक्यूल. यहाँ भी उतना ये नहीं है. जस्ट मिनट, हम देखते हैं अगर ब्रांच अवेलेबल है तो. Most of these plants are available in our surroundings, so you can observe these plants. Ixora, just a minute. Leafy branch डाल देते. The branch of Ixora, you can observe the presence of interpetiolar spicule, लेकिन अबाउट ऊपर से लिया हुआ फोटोग्राफ है, सो आपको यहाँ नहीं दिखेगा. So remember, in case of Rubiaceae and in case of Ixora,
interpeculiar spicule is available. चलो ठीक है, नहीं मिला तो भी। क्या आप लोगों ने, मैंने आपको एक मैसेज डाला था मॉर्निंग में, पढ़ा है? हेलो हेलो, क्या आप लोगों को, आई हैव ड्रॉप वन मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू ड्यूरिंग द मॉर्निंग, क्या आप लोगों ने मैसेज पढ़ा है? तो आई थिंक देर आर 17 पीपल्स आर प्रेजेंट। शाजिया, शीतल, शिवानी, श्रुति बागड़े, श्रुति कटरे। सो 17 ऑफ यू आर प्रेजेंट। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों की सरप्राइज टेस्ट लेने वाला हूँ। क्या आपके ध्यान में है? कितने बजे है अभी? हेलो, 3 जस्ट 3 बजे है। जस्ट आप लोगों के लिए मैं एक, अभी हम एक टेस्ट देख रहे। मैं अभी अभी आपके ग्रुप पर एक लिंक टेस्ट कर रहा हूँ। जस्ट मिनट। लिंक को क्लिक करके थोड़ा वीडियो ऑन जैसा है वैसे ही रखना है, लेकिन लिंक को क्लिक करके आपको, जस्ट मिनट, आ रहा है। लिंक को क्लिक कर लो और टेस्ट शुरू करो, और वीडियो भी अपने ऑन रखो। चलो वीडियो ऑन रखो सभी। सर हाँ बोलो। सर लिंक नहीं आई मुझे। क्यों? एक सेकंड, लिंक क्यों नहीं आएगी आपको? लिंक तो दिख रही मुझे ग्रुप पर। हेलो, क्या लिंक नहीं आई है? नहीं सर। हाँ, ताहिराम, ताहिराम जस्ट मिनट, आप टेलीग्राम पे है क्या? यस सर। जस्ट ताहिराम, तहरीम नाम है आपका। जस्ट मिनट। चलो वीडियो ऑन करके देख लो, वीडियो ऑन करके रखो, मुझे देखना है आप लोग क्या कर रहे हैं। ऋतु, लिंक आई है? यस सर। लिंक आई है, लिंक को क्लिक करके शुरू करो। यस सर, आ गई। हाँ, लिंक को क्लिक करो, वीडियो ऑन रखो। शिवानी, शिवानी लिंक मिल रही? यस सर। हाँ चलो शुरू करो, शुरू करो। आपके पास 20 मिनट का टाइम है। 3:20 को मैं आपको अभी पूछूंगा आप क्या कर रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है? शीतल, शीतल बिसेन, कोई प्रॉब्लम है? No problem, sir. ओके चलो कंटिन्यू करो। शाजिया, Yes, sir. शाजिया,
कोमल, संपदा, तहरीम, तहरीम लिंक मिल गई? यस सर, मिल गई। चलो, सर वहाँ पे टाइप ही नहीं हो रहा है। क्या टाइप नहीं हो रहा है? कुछ सर नेम वगैरह लिखना है, वो टाइप ही नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा है? क्लिक यस ही नहीं सर, हो रहा उधर। प्रॉब्लम है। जस्ट मिनट, नो सर, नहीं होगा टाइप सर। जस्ट मिनट, लिंक नहीं आई। जस्ट मिनट, कोई कोई इशू नहीं है, मैं थोड़ा एडिट कर देता लिंक को। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी हम देख लेते। जस्ट मिनट। सेटिंग, कलेक्ट ईमेल रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू वन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शफल क्वेश्चन ऑर्डर्स है, पीसेस, मेक दिस पीस इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, लिस्ट क्वेश्चंस, कोई तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एवरीथिंग इज नाउ फाइन। जस्ट मिनट, एक बार और चेक करता हूं मैं। जस्ट मिनट, मैं फिर से लिंक शेयर कर रहा हूं। आप बता दीजिए कोई प्रॉब्लम है और भी? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हेलो, हेलो, कोई तो एक रिप्लाई करो, क्या लिंक विजिबल है? यस सर, यूनिट आइए। परमिशन दिखा रहा है सर। हाँ, सर यूनिट सर आ यूनिट परमिशन। परमिशन आ रहा है। यूनिट परमिशन परमिशन। दिखा रहा है। यूनिट परमिशन। परमिशन नहीं तो क्या आप और लोगों ने सर आपको तो वो किसी और की ही आईडी दिखा रहा है। किसकी आईडी हर्षदा दिखा? जनरल। मेरे को जनबंधु की आ रही है। जस्ट मिनट। हाँ सर, मुझे भी। ओके, जस्ट मिनट, रुको। यस सर, मुझे भी श्रुति की आ रही है सर। ओके, जस्ट मिनट, होगा कुछ प्रॉब्लम होगा। अब देख लो। नहीं हो रहा है? नो सर, फिर से यूनिट परमिशन ही दिखा रहा फिर है। से वही आ रहा है, यूनिट परमिशन। तो क्या आप लोगों ने अपने क्लासरूम से लॉगिन नहीं किया? सर जो आपने लिंक भेजी थी उसी से लॉगिन किया है। सर जो आपने टेलीग्राम पे लिंक भेजी है उसी से ज्वाइन किया है। लेकिन अपना ये शुरू नहीं है, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट शुरू नहीं है। सर वो लिंक पे क्लिक करने के बाद यूनिट परमिशन बस इतना ही आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा। ओके, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, मुझे एक 5 मिनट दे दो, मैं थोड़ा सा अपडेट करता हूँ, क्या प्रॉब्लम है देख लेते। एक 5 मिनट।
हेलो, Sir, again it's saying you need permission. परमिशन तो मैंने ग्रांट किया है यहाँ से सबको। सर वो आईडी दूसरी बता रहा है। कौन सा आईडी बता रहा है? सर मेरे इसमें जनबंधु की आ रही है अभी भी। हाँ, जस्ट फिर से सर कर। मेरे इसमें हाँ भी सर, मुझे भी यही आ रही है। ओके ओके, रुको रुको, एक मिनट रुको, सिर्फ एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। आयडी दुसरा विचारतो त्याला, दुसरा म्हणजे कोणाचा तरी दुसऱ्याचा आयडी डिस्प्ले होते। सेटिंग मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे? चला रिस्पॉन्स रिसीव्ह काढून टाकू. रिस्किप काढा ना तो. काढला होता ना, म्हणून म्हटलं सेव्ह नव्हता केला. हा सेव्ह करायचा आधी. ते पण नाही शकल क्वेश्चन ऑर्डर सगळं बरोबर आहे, आधी सेव्ह करा. हा सेव्ह करा. सेव्ह केला. आता पाठवा. आता याला बंद करू. यस, लिंक कोणा शेअर करू. रिस्ट्रिक्टेड काढा त्याच्यावर. हा ठीक आहे, बरोबर आहे. बरोबर आहे. कॉपी करा, कॉपी करा. आणि हिस्ट्री ऑफ सायन्स पण बरोबर आहे. New one in this book with this link and editor नाही इथे एडिटर का एडिटर निघतच नाही ना तो. एडिटर निघत नाही, तोच तर प्रॉब्लेम आहे. रिस्ट्रिक्ट करा, रिस्ट्रिक्टेड. आता पाठवा. आता पहिला क्लिअर कॉपी करा. हेलो, यस सर। चलो Yes. और एक बार मैं आखिरी बार ट्राई कर रहा हूँ, कुछ तो सेटिंग में गड़बड़ है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आखिरी वाली लिंक एक बार से क्लिक करके देख लो, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। इसके पहले कभी नहीं ऐसे हुआ। क्या हो रहा है अभी? सर स्टिल सर जनबंधु। अभी भी वो की जान जनबंधु की आ रही। सर जनबंधु की आ रही सबको। सबको हाँ जन्म- सर। सबको जन्म। ओके चलो, एक काम करते, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। अभी हम फिर टेस्ट नहीं लेते, हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल कंटिन्यू करते हैं। कुछ तो टेक्निकल फॉल्ट है। 10 मिनट का ब्रेक ले लो, तब तक मैं कोशिश करता हूँ, तब तक आप अपनी तैयारी करो जो भी है। सर सर हाँ बोलो। सर आपने जो सुबह वीडियो भेजा था ना, हाँ 9 बजे, उसके बाद से अभी जो आपने लिंक भेजे ना जितने भी, वो हाँ, एक भी लिंक मुझे नहीं आई। सवेरे 9 बजे मैंने वीडियो भेजा था आज। हाँ सर, ये हाँ, ये इसके वीडियो बाद सर इसके बाद मुझे कोई भी मीन्स लिंक भी नहीं आई, और उसके हाँ, नीचे जो दिया ना वो कुछ भी नहीं आया। लेकिन आप ग्रुप में हैं? यस सर हूँ। यानी यस आप सर सेम प्रॉब्लम। सर सेम प्रॉब्लम। ओके ओके, रुको कुछ सिलेक्ट मैसेजेस डिलीट एंड ये जब मेरी से तरफ दिया हाँ, मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम यहाँ दिख नहीं रहा है मुझे। नहीं ना, फिर आप ज्वाइन कैसे हुए? हम नहीं ना? क्लासरूम से। ओके, आप क्लासरूम से ज्वाइन हुए। अगर मैंने समझ लो कि ये लिंक क्लासरूम में पेस्ट की तो क्या होगा? नहीं ना? चलो एक बार, आखिरी बार हम ट्राई करके देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू पेस्ट द लिंक इन अ क्लासरूम। आप अगर क्लासरूम से ज्वाइन होते तो शायद ये लिंक खुल जाएगी। हेलो हेलो, यस सर। ओके सर। चलो मैंने लिंक क्लासरूम में शेयर की है। क्लासरूम में शेयर किया, आप वहां से लिंक उठा दो, फिर देखते क्या होता है प्रॉब्लम। क्लासरूम मध्ये जाणार म्हणजे कॉलेजचा आयडी ओपन असेल। ऑप्शन येतो, 2 आयडी असल्यावर एक ऑप्शन येतो, त्याच्यात स्वतःची नाही कॉलेजची वापरायची. तो बता। हेलो, क्या आपने क्लासरूम से लिंक को क्लिक किया? सर क्लासरूम से भी जनबंधु का ही दिखा रहा। हाँ सर। क्लासरूम से भी जनबंधु का दिखाया। यस सर।
चलो, अगर नहीं है तो मैं आपको, हम थोड़ी बात कर लेते, सामने देखते कम से कम क्या है वो। हेलो, क्या यस अभी सर। क्या अभी आपको फॉर्म दिख रहा है? गूगल फॉर्म दिख रहा है? यस सर। क्या प्रॉब्लम हो गया? आई डोंट नो, मुझे कुछ आइडिया नहीं है आपका प्रॉब्लम क्या हो गया वो, और अभी इमीडिएट सॉल्व भी नहीं होगा। चलो, ऐसे दिया था मैंने टेस्ट। ओके ओके, इसका मतलब ऐसा है कि इंस्टीट्यूशनल आईडी जनबंधु ने पहले डाला और उसका सिलेक्ट हो गया। ओके, लेकिन जनबंधु ने जो डाला वो तो कम से कम रिस्पांस तो एक ही आया दिख रहा है, वो भी कल मैंने जो टेस्ट, मैंने कल खुद ये किया था, तो कल पूरे मैंने सॉल्व किए थे, तो कल कोई प्रॉब्लम नहीं आया, इसलिए मैंने उसको रख दिया था। और अभी अगर देखा तो मेरे पास किसी का भी रिस्पांस आया नहीं है, जनबंधु ने भी नहीं ये किया। सर क्लासरूम पे लिंक ओपन हो गई है। हाँ, फिर ओपन हो गई है, हाँ, तो उसमें स्टार्ट करना है। करो, स्टार्ट कर दो। हाँ ठीक है सर। ठीक है, प्लीज एक मिनट, बाकी लोगों का क्या है? आप कौन बोल रहे थे अभी? सर नैना। नहीं ना, बाकी लोग भी क्लासरूम से ट्राई कर लो, क्लासरूम से ट्राई कर लो, और जिनका शुरू हो रहा है वो शुरू रखो। अपन 3, 3:15 बजे है, 3:25 के बाद हम मिलते, नहीं तो 3:30 बजे मिलते, 20 मिनट देते आपको। सर मैंने टेलीग्राम पे फोटो सेंड की हूँ, स्क्रीनशॉट वैसा ही दिखा रहा है क्लासरूम से भी। जस्ट मिनट, टेलीग्राम तो मैं पे, क्लासरूम में ऐड नहीं हूँ आपके। जस्ट मिनट, कौन है? इसका मोबाइल नंबर और आईडी भी वो हर्षदा की दिखा रही है, क्लासरूम से भी ओपन किए तो। ठीक है ना, आप चेंज कर दो ना उसको। वो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा, तो एक काम कर दो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 3:25 को हम मिलते, हम दूसरा कंटिन्यू करते, इसके चक्कर में अभी नहीं जाते, अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, सामने जाना है हमें, वो भी नहीं हो रहा है। ओके, हेलो, यस सर। ओके, हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और 3:30 को बराबर 10 मिनट बाद हम मिलते, तब तक आप रेस्ट ले लो, नहीं तो आपका कुछ और काम हो तो वो देख लो, 10 मिनट के लिए रेस्ट ले लेते। सर हाँ बोलो। सर वो कुछ फ्लावर्स लाई थी सर मैंने दिखाने के लिए आपको। बस एक 10 मिनट के बाद बात कर लेते, वो सबको ओके प्रॉब्लम सर, भी नहीं ओके होती। सर। हाँ, तब तक एक 10 मिनट ब्रेक ले लो।